Hello everyone, my name is Kitty Tripathi and I am faculty of Electrical Engineering Department in BBD NIIT Lucknow. Welcome to yet another lecture of Power System 2 with AKTU subject code as KEE601. In the module number 1, we were discussing about sequence impedances, the sequence components. Now let us move one step ahead and try to understand what is sequence impedance and what is sequence network. ठीक है, तो before moving into it, let us quickly recall what we have discussed in the previous lecture. So what we have discussed in the previous lecture was कि we know how to represent any unbalanced equation, unbalanced phasor value or unbalanced phases VA, VB, VC into three set of balanced elements, which is VA1, VA2, VA0. VA1, VA2, VA0 are positive phase sequence element, negative sequence element and zero sequence component. So we have representation in terms of the symmetrical components. ठीक है, तो कोई भी फेज हो A, B, C अगर अनबैलेंस कंडीशन में है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको बैलेंस कंडीशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और रिप्रेजेंटेशन भी ऐसा कर रहे हैं कि रेफरेंस बैलेंस्ड सिमेट्रिकल एलिमेंट्स के टर्म में ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मतलब इफ वी आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ VA एज अ रेफरेंस, so we will be referencing VB and VC also in terms of components of VA, which is VA1, VA2 and VA0. तो VA1, VA2, VA0 को हम लोग VA, VB, VC तीनों ही को VA1, VA2, VA0 के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगा. सारा अनसिमेट्रिकल एलिमेंट सिमेट्रिकल फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट हो जाएगा. तो हम इससे इम्पीडेंस डायग्राम, रिएक्टेंस डायग्राम और जिस भी तरह की एनालिसिस करनी है स्ट्रेट टू द पॉइंट विदाउट एनी एक्स्ट्रा बॉदरेशन वी कैन डू, एंड इट विल सिंप्लीफाई द कैलकुलेशंस quite a large number of times as compared if we would not have done this method, right? तो वोल्टेज और करंट की तो बात कर ली थी. लेट्स क्विकली जंप ऑन हाउ डू वी डिटरमाइन दिस पावर ऑल्सो in terms of sequence elements such that whenever power is to be calculated, we think we should have keeping things in mind. But before that, we should always remember the value of matrix of transformation which we are using to convert VA, VB, VC into its symmetrical component VA1, VA2, VA0. And what is that matrix? A. ठीक है. Now let's quickly jump on to the power. We know that whenever in a three-phase system we want to represent power, we write voltage into current or transpose of current L. We are quite aware of this thing. So let's quickly try to calculate the value of power. If we have to write it, we will multiply voltage and current. ठीक है. अब बात है कि हमारे पास जो भी बेसिक एलिमेंट्स थे वो बिना बैलेंस कंडीशन के थे, नॉर्मली फेज वैल्यूज थे. अब हम क्या करें, उसको सिमेट्रिकल कंपोनेंट में कन्वर्ट करें. तो VB को सिमेट्रिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो व्हाट वी हैव टू डू, वी विल हैव VA, VB, VC को यानी फेज वैल्यूज को, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स यानी कि A. तो देखो यहाँ पर फर्स्ट एक्सप्रेशन तो अगर आप लोग ध्यान दें तो VP को व्हाट वी हैव डन, वी हैव used as A into VS, where VS is the annotation of representation in terms of symmetrical component. ठीक है. अब मल्टीप्लाई करने के लिए मैट्रिक्स में ऑर्डर का मैच होना जरूरी होता है, दैट इज व्हाई वी हैव टू डू द ट्रांसपोज. ठीक है. सिमिलरली I ऑल्सो करंट. नाउ करंट को भी अगर हम IA, IB, IC लिखा हुआ है तो उसके सीक्वेंस कंपोनेंट के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैसे करेंगे, A ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके. तो IP को भी क्या लिखा जा सकता है, A टाइम्स I इंटू S, ताकि सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है. The conjugate of current has to be taken, so here also it is mentioned. Now take out values A and from the voltage side also, from the current side also. देखो यहाँ पर भी A का मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी A का किया ही है. A का ट्रांसपोज है इधर और इधर A का कॉन्जुगेट है A स्टार. So if we write the value of this transformation matrix separately, what we can write, वोल्टेज का वैल्यू तो अलग से रखा ही है VS, करंट का वैल्यू IS स्टार है ही है. ठीक है. VS का भी ट्रांसपोज लिया है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बैलेंसिंग के लिए. ठीक है. A का दोनों टर्म साथ में लिख लें तो क्या हो जाएगा, इस वोल्टेज के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है A का ट्रांसपोज हुआ है, करंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाने से कॉन्जुगेट लेना पड़ रहा है, इसलिए A ट्रांसपोज इनटू
A conjugate. Now simply what we have to do, we have to multiply this, take the value of A transpose and take A conjugate. We will take A conjugate, we will get this value. A we are aware, ट्रांसपोज करना हमें आता है, रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, वी विल गेट अ वैल्यू. ठीक है. On solving, what we will obtain is, we will obtain this term 3 times Vs into Is star. Vs is the transposed version which is mentioned here. क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ पर पावर भी देखो हम लोगों ने क्या किया है, in terms of symmetrical components we have represented. Now 3 times Vs into Is. Vs और Is क्या है? Symmetrical representation of voltage and symmetrical component representation of current. अब सिमेट्रिकल कंपोनेंट में है ही क्या, तीनों टर्म्स. Va को अगर हम यहाँ Vs के सिमेट्रिकल को लिखें तो यहाँ हम तीनों एलिमेंट्स में लिख सकते हैं, Va0, Va1, Va2, क्योंकि रेफरेंस फेज के ही टर्म्स में हमने सब कुछ लिखा हुआ है. सिमिलरली Is को भी हम लोग इन तीन कंपोनेंट्स के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Ia0, Ia1, Ia2. 3 टाइम्स का मल्टीप्लाई है. इसको अगर मैट्रिक्स से एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे, व्हाट वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन. Now see what it is indicating us. यहाँ पर हमें पावर के लिए 3 types of conditions दिख रही हैं कि we are adding the voltages and currents of same sequence together, multiplying it and then adding all the 3 values to get the value of power. मतलब voltage और current के पॉजिटिव सीक्वेंस को ही आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है, नेगेटिव सीक्वेंस को ही आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है और जीरो को आपस में टुगेदर मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और फिर ही इनको ऐड कर कर हम रिजल्टेंट पावर की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं. सो हियर इज हाउ वी कैन ऑब्टेन पावर ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस कंपोनेंट. ऑल द इश्यूज ऑफ सीक्वेंस कंपोनेंट रिजॉल्व्ड. नाउ लेट अस मूव ऑन टू सीक्वेंस इम्पिडेंस. व्हाट इज सीक्वेंस इम्पिडेंस? तो यहाँ पावर के साथ हमने देखा 3 सेट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं. तो इसी चीज से हमने डिराइव किया है द कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंस इम्पिडेंस. नाउ व्हाट इज सीक्वेंस इम्पिडेंस? सीक्वेंस इम्पिडेंस में व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू कि वी आर ऑल्सो सेइंग हियर कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस इम्पिडेंस सर्किट, जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस एंड नेगेटिव सीक्वेंस. हाउ आर वी ऑब्टेनिंग जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस एंड इम्पिडेंस सीक्वेंस? By observing which type of current is flowing in that system. मान लो there is a network where there is a current of flowing of current is of positive sequence only, we will say the impedance obtained from it is a positive sequence impedance. ठीक है. अगर Ia0 फ्लो हो रही है नेटवर्क में तो इम्पिडेंस जो उससे ऑब्टेन हो रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस. Ia1 फ्लो हो रही है तो बोल रहे हैं पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क. Ia2 फ्लो हो रही है तो बोल रहे हैं नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क. एज सिंपल एज दैट. ठीक है. Where do we and why do we need to apply this sequence impedance? So please remember, whenever we were trying to calculate anything from one line diagram, what we did was to convert it into per unit systems and then represent it in form of impedance diagram. So we need to have impedances. नाउ इन अनबैलेंस सिचुएशन ऑल्सो अगर हम इम्पिडेंस डायग्राम बनाएंगे नहीं तो हम अनबैलेंसिंग को समझेंगे कैसे. तो किया क्या जाता है, नेटवर्क को वेरियस टाइप्स ऑफ मॉडल में रिप्रेजेंट किया जाता है एंड दैट मॉडल इज बेस्ड ऑन व्हाट टाइप ऑफ करंट इज फ्लोइंग इन दैट नेटवर्क and that is called as respective sequence impedances and the network will thus called as respective sequence network. So on the basis of this factor हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 3 तरह के सीक्वेंस इम्पिडेंस या 3 तरह के सीक्वेंस नेटवर्क हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. ठीक है. नाउ वी हैव टू अप्लाई दिस ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ कंडीशंस एंड अंडरस्टैंड इट. किस कंडीशन में? जो जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उनके. तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स हियर वी विल बी गोइंग थ्रू? वी विल बी गोइंग थ्रू अ बैलेंस्ड लोड which is star connected, right? Then we will also be understanding how to understand or determine this sequence impedance for a transmission line, for transformers and for generators also. The primarily all the components which are involved in this power system. ठीक है. Let's understand there a factor that there is a star connected load which is having some neutral impedance. We can understand it like this.
सी व्हाट आर वी ट्राइंग टू शो हियर कि हमारे पास एक 3 फेज लोड है जो स्टार कनेक्टेड है और न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड है, ग्राउंडिंग न्यूट्रल है, एंड विथ इट इज इम्पिडेंस ग्राउंडिंग वेयर दैट इम्पिडेंस ऑफ द न्यूट्रल इज Zn. ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि अगर हमें सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स या सिमेट्रिकल नेटवर्क्स की बात करें या सिमेट्रिकल इम्पिडेंसेस की बात करना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे सिमेट्रिकल इम्पिडेंसेस को। तो हम लोगों ने क्या बोला, किस पे डिपेंडेंट होते हैं हम लोग, करंट पर। जिस तरह की करंट फ्लो हो रही है उस तरह के इम्पिडेंसेस। तो यहाँ पर ये जाने भी तो इम्पिडेंसेस की वैल्यू किस बैट फैक्टर पर डिपेंडेंट है या क्या एक्सप्रेशन निकल कर आ रही है। सो लेट्स क्विकली जंप इनटू द डेरिवेशन। वी नो दैट इफ वी वांट टू से न्यूट्रल करंट कितनी है तो क्या है, तीनों फेजेस का टोटल सम न्यूट्रल के थ्रू डाउन कनेक्टेड है, तो आई एन कैन बी रिटन एज आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी। ठीक है, प्लीज रिमेंबर यहाँ हम आई ए, आई बी, आई सी को रेस्पेक्टिवली सिमेट्रिकल कंपोनेंट VA1, VA2 और VA0 के फॉर्मेट में जब भी चाहें जहां भी चाहें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ वोल्टेजेस। इफ वी हैव टू टेक द पोटेंशियल ऑफ अ फेज with respect to ground, what we have to write, the value of impedance of a phase into current, value of impedance of the neutral and current going through the neutral. This is what ideally should happen. तो अगर फेज ए की बात करें तो फेज ए का वोल्टेज अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है, करंट इंटू इम्पिडेंस ऑफ दैट फेज वोल्टेज इम्पिडेंस प्लस करंट ऑफ न्यूट्रल इंटू इम्पिडेंस का न्यूट्रल, देन ओनली इट विल हैव वन कंप्लीट सर्किट। तो VA can be represented as IA Z of the phase and IN plus ZN is the impedance of the neutral. ठीक है, तो इस फॉर्मेट में हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब if we have to remove this IN term, what we can do is we can write it IN is IA plus IB plus IC। तो ये एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, IA इंटू ZY प्लस आई एन को क्या लिख सकते हैं, आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी इंटू जेड न्यूट्रल। अब हम सिमिलरली ऐड एक साथ सिमिलर क्वांटिटीज एक साथ रखें तो आई ए के साथ दो टर्म हमें मिल रहे हैं जेड वाई प्लस जेड एन। तो सी हियर इट इज रिटन जेड वाई प्लस जेड एन इंटू आई ए। आई बी के साथ सिर्फ जेड एन है, आई सी के साथ सिर्फ जेड एन है। सिमिलरली अगर हम फेज बी के साथ करना चाहें तो वी बी जी को क्या लिख सकते हैं, करंट आई बी इंटू उस ब्रांच का इम्पिडेंस प्लस न्यूट्रल करंट इंटू न्यूट्रल का इम्पिडेंस। अब यहाँ फिर करिए तो देखिए क्या आ रहा है, आई बी इंटू जेड वाई, न्यूट्रल को हम फिर आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी के फॉर्म में लिख सकते हैं, आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी इंटू जेड एन। यहाँ देखो क्या हो रहा है, आई ए अकेला जेड एन के साथ है, आई बी के साथ क्या दो इम्पिडेंस आ रहे हैं जेड वाई और जेड एन, और आई सी सेपरेटली। सिमिलरली हम जेड वी सी का भी कर सकते हैं एंड इट विल कम आउट टू बी दिस एक्सप्रेशन। अब हम इन तीनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो एक साइड वोल्टेज की मैट्रिक्स आ रही है हमारी वी ए ग्राउंड न्यूट्रल के साथ, वी बी न्यूट्रल के साथ और वी सी न्यूट्रल के साथ, और दूसरे साइड क्या वैल्यूज हैं, आई बी आई सी एंड आई ए आई बी एंड आई सी, थ्री करंट्स। ठीक है, अब देखते हैं वी ए जी में आई ए के साथ देखो हम लोगों के पास क्या है, जेड वाई प्लस जेड एन, तो इट ब्रांच का इम्पिडेंस प्लस न्यूट्रल का, उसके बाद केवल ब्रांच का। सिमिलरली वी बी को लिखेंगे तो जेड न्यूट्रल, और यहाँ हो जाएगा जेड वाई प्लस जेड न्यूट्रल, और यहाँ फिर से जेड न्यूट्रल, यहाँ जेड न्यूट्रल, यहाँ जेड न्यूट्रल, यहाँ जेड वाई प्लस जेड न्यूट्रल। दिस विल कम आउट टू बी द display which is shown here in the matrix form. So this is how we can represent. Now see here, हमें हर कंडीशन में क्या वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस मिल रही है वो हमें दिख रहा है क्लियरली इस टेबल से। कैसे दिख रहा है, ये देखो क्या है, वोल्टेज का मैट्रिक्स है, ये क्या है, करंट का मैट्रिक्स है, ये बीच में जो एक्सप्रेशन जो लोड के लिए लिखा है हमने, स्टार कनेक्टेड लोड के लिए, वो क्या है, इम्पिडेंस का मैट्रिक्स है। Now simply it is nothing but V is equal to Z into I। ठीक है, अब अगर हम सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, चलो तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन इन स्पाइट ऑफ राइटिंग V वी कैन राइट A into V। क्यों, क्योंकि हमने सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स में रिप्रेजेंट कर लिया। सिमिलरली
आई को निकालें तो आई को भी क्या लिख सकते हैं, ए इंटू सिमेट्रिकल कॉम्पोनेंट ऑफ आई। अब इस एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या हो जाएगा, इस v इज इक्वल टू आई इंटू जेड वाले फॉर्मूले में v की जगह हम लोग a इंटू वी एस लिख रहे हैं, i की जगह हम लोग a इंटू आई एस लिख रहे हैं, z इज एज इट इज, ठीक है। नाउ what we have to do, we have to determine this, थोड़ा सा रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। एक v इज इक्वल टू आई इंटू जेड लिखा जाता है ना, तो v को अकेला करते हैं लेफ्ट साइड में और देखते हैं कि कैसे हैंडल हो सकता है। तो v को अकेला छोड़ेंगे तो क्या कर सकते हैं, v के साथ अगर कोई टर्म नहीं आना हो तो a इनवर्स मल्टीप्लाई कर दें, तो a इनवर्स को दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ vs हो गया, यहाँ a इंटू जेड इंटू ए इनवर्स इंटू आई एस। यहाँ z के बजाय अब 3 एलिमेंट आ गए, a z a इनवर्स। अब a मैट्रिक्स हमें क्या है पता है, इनवर्स मैट्रिक्स हमें पता है, z अभी तो निकाली हम लोगों ने, ये वाली मैट्रिक्स, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस टर्म। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से हमें एक्सप्रेशंस दिख रहा है कि पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस में इम्पिडेंसेस की वैल्यू सी दे आर सेम, and when we talk about zero sequence, it is 3 impedance of the line plus 3 times the impedance of the ground। यहाँ से ये चीज़ क्लैरिफाई हुई। तो यहाँ से हमें इम्पिडेंसेस मिल गया कि अगर स्टार कनेक्टेड लोड है तो उसको पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव निकालना हो तो क्या करना है, जीरो निकालना है तो क्या करना है। सो वी कैन ईजिली रिप्रेजेंट ऑल दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिकल कॉम्पोनेंट्स ऑफ इम्पिडेंस। What is the benefit of doing it? We can decouple the network. This is the most important benefit. How? Let's see. यहाँ पर what we are able to visualize, V is equal to I into Z का मैट्रिक्स है, ठीक है। V को हम लोगों ने जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस में रिप्रेजेंट किया है। दिस इज V0, दिस इज V1 एंड दिस इज V2, ठीक है। और यहाँ पर भी I0, I1 एंड I2 सिमेट्रिकल कंपोनेंट में रिप्रेजेंट करने के बाद ही तो ये एक्सप्रेशन आया था, ZY प्लस 3ZN, ZY एंड ZY। यहाँ से हम सेग्रीगेट कर पा रहे हैं, देखिए अगर हमें सिर्फ जीरो सीक्वेंस का लिखना है तो सी द अपर रिजीम ऑफ दिस मैट्रिक्स, सॉल्व दिस, व्हाट वी गेट, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क बन सकता है। कैसे, क्योंकि हम पूरे नेटवर्क की इक्वेशन तो अलग से निकाल ही ले रहे हैं। VA0 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ZY प्लस 3ZN इंटू IA0 या I0 वॉट एवर इट इज, ठीक है, प्लस 0 इंटू I1 प्लस 0 इंटू I2। सो सी दिस एक्सप्रेशन क्लियरली, इट इज ओनली हैविंग द component of zero sequence. That is why the network derived from this, or we can draw the network from this, that will be called as sequence network. Which network? Zero sequence network. Similarly, for positive we can write, what we can write, Z into positive sequence component, and for negative also simply we can write Z into negative sequence component. So networks are now decoupled. It is more easy to analyze and calculate. Now let's jump on to the balanced load equations. See here what we have done. We are considering it for transmission lines. Now there is one condition here which we have to keep in mind, which is we are taking a fully transposed transmission line. We have already studied in power system 1 that why transposition is required and what is a fully transposed line. So let us here assume that there is a 3-phase transmission line, ठीक है, which is fully transposed and it has impedances of the line as represented by ZS यानी self impedance, and due to the transposing of network they have some mutual impedances also which is being represented here by Zm. तो see in the diagram फेज ए बी सी जो भी ट्रांसपोज हुआ है सबके बीच में आप देख रहे होगे कि हाँ देखो फेज ए को देखते हैं तो उसके साथ क्या है, इसका ZS है, और फेज ए और बी के बीच, फेज ए और सी के बीच, दोनों के ही बीच हम लोग क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल इंपिडेंसेस को भी कंसिडर कर रहे हैं। सेम फेज बी के लिए भी करें, सेम फेज सी के लिए भी करें, ठीक है। अब हम इसमें KVL लगाते हैं इक्वेशन में। VA का एक्सप्रेशन लिखें तो व्हाट वी कैन राइट, IA करंट फ्लो हो रही है, ZS इंटू IA प्लस while returning to the path it is also going to consider the mutual impedances also. तो since one mutual impedance is with respect to phase B जो IB करंट कैरी कर रहा है
और वन इम्पिडेंस इज विथ रेस्पेक्ट टू फेज सी जो IC करंट कैरी कर रहा है, तो म्यूचुअल में क्या क्या एक्सप्रेशन आएगा, Zm इंटू IB और Zm इंटू IC, और फाइनली ग्राउंड हो रहा है विथ हेल्प ऑफ अ ग्राउंड इम्पिडेंस Zn, सो इट इज रिटन एज Zn इंटू IN. सेम गोज विथ फेज वोल्टेज B को लिखेंगे तो क्या करेंगे, A के साथ म्यूचुअल इम्पिडेंसेस है तो Zm इंटू IA, B जो अपनी ही लाइन है उसका लाइन करंट इंटू लाइन इम्पिडेंस Zs इंटू IB. सिमिलरली C के साथ भी म्यूचुअल इम्पिडेंस का इफेक्ट होने की वजह से Zm इंटू IC, और न्यूट्रल के थ्रू कनेक्ट हो रहा है और न्यूट्रल का इम्पिडेंस Zn है इसलिए Zn इंटू IN. सेम गोज विथ VC एंड वी शुड रिमेंबर IN की बात कर रहे हैं तो IN मीन्स IA प्लस IB प्लस IC. नाउ अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें इस एक्सप्रेशन में, लेट अस सब्स्टिट्यूट ओनली फॉर VA एंड सी इट, सो वी कैन राइट एज Zs इंटू IA, ठीक है, Zm इंटू IB प्लस Zm इंटू IC प्लस Z न्यूट्रल इंटू IN को क्या लिख सकते हैं, IA प्लस IB प्लस IC, ठीक है. VA को ब्रेक करें तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, ZS प्लस ZN इंटू IA प्लस ZM प्लस ZN इंटू IB प्लस ZM प्लस ZN इंटू IC. तो 3 एलिमेंट्स हमें यहाँ दिख रहे हैं. अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो ZS प्लस ZM, ZM प्लस ZN एंड ZM प्लस ZN. सिमिलरली B के लिए भी निकाल लें, सिमिलरली C के भी निकाल लें. सेम फेज में क्या हो रहा है, जब जिस फेज में है उसी फेज का फेज सीक्वेंस आ रहा है, तो B में ZS प्लस ZN यहाँ है और C में ZS प्लस ZN यहाँ है. बाकी सब म्यूचुअल के साथ कनेक्टेड हुए हैं और न्यूट्रल ऑब्वियसली इंक्लूडेड है तो Zm प्लस ZS है. यहाँ क्या हुआ, ट्रांसमिशन फुली ट्रांसपोज ट्रांसमिशन लाइंस को भी हम लोगों ने किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया. प्लीज रिमेंबर अभी हमने सीक्वेंस कंपोनेंट को कन्वर्जन नहीं किया है, अब करेंगे. अब हम चाहते हैं सीक्वेंस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दें. कैसे कर सकते हैं ये काम, सीक्वेंस फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो क्या कर सकते हैं, A का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एवरी सिंगल टाइम. अब फिर से वही एक्सप्रेशन जो पिछली बार लिया था हम लोगों ने, V इज इक्वल टू I इंटू Z, ठीक है. अब हमें यहाँ इसको भी किस फॉर्मेट में लिखना है सीक्वेंस के, तो मान लिया A इंटू VS, I को भी क्या लिख सकते हैं A इंटू IS, और Z तो हमें निकालना ही है, ठीक है. अब VS को सेपरेटली कर लें तो उधर क्या लिख के जाएंगे, A इंटू Z इंटू A इनवर्स इंटू IS. अब A इंटू Z इंटू A इनवर्स ही हमारा क्या हो जाएगा, इम्पिडेंस. Z की मैट्रिक्स निकली है, A पता ही है, A इनवर्स पता ही है, मल्टीप्लाई करके देखें वी विल गेट दिस. ये रिजल्ट हमें क्या डिक्लेयर कर रहा है फिर से, कि पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस में इम्पिडेंसेस की वैल्यू सेम आई है. जीरो सीक्वेंस में क्या हो रहा है, इट इज इक्वल टू ZS 2 टाइम्स Zm and 3 times the neutral impedances. This is the condition of balanced load situation for 3-phase system when represented in terms of sequence network. Same goes with the entire transmission lines. Again we can clearly understand it for transmission line. That is the same procedure which we have been done for. This can be done and understood for सेम सिचुएशन सेट ऑफ आप बैलेंस लोडेड कंडीशन या बैलेंस लोड के साथ भी देख सकते हैं, और सेम सिचुएशन हम ट्रांसमिशन लाइन के साथ भी देख सकते हैं. हमें रिजल्ट ऑब्टेन हो जाता है, तरीका एग्जैक्टली सेम है सॉल्व करने का. सीक्वेंस इंपिडेंस हमें यहाँ सेपरेटली 3 सर्किट दिखा रहा है. फर्स्ट सर्किट जो हमें डिड्यूस हो रहा है वो क्या दिखा रहा है, फर्स्ट सर्किट हमें दिखा रहा है कि जीरो सीक्वेंस किसके इक्वल है, ZS प्लस 3ZN. यहाँ क्यों हमने ऐसा किया, ट्रांसमिशन लाइन से और इनमें क्या ही अंतर हो रहा है, एक ही अंतर था पिछले वाले केस और इस केस में. हमने म्यूचुअल इम्पिडेंसेस को कन्वर्ट कैलकुलेट यहाँ यूटिलाइज नहीं किया हुआ है. तो सिर्फ देखोगे पिछले एक्सप्रेशन से इस एक्सप्रेशन में एक ही बदलाव है, वो है Zm की वैल्यू यहाँ नहीं है, ठीक है. अदरवाइज पूरा प्रोसीजर सेम है. व्हेन वी स्टार्ट फॉलोइंग द एंटायर प्रोसीजर, व्हाट वी कैन गेट द रिजल्ट, वी आर गेटिंग द रिजल्ट कि फेज A और B में जो सीरीज में इम्पिडेंस है या जो इम्पिडेंस है उस फेज का, वही ही आपका सीक्वेंस इम्पिडेंस हो रहा है. और हम जब जीरो सीक्वेंस की बात करते हैं तो इम्पिडेंस ऑफ द फेज प्लस 3 टाइम्स इम्पिडेंस ऑफ द न्यूट्रल इज व्हाट वी आर हैविंग इट. दैट्स इट, दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.